Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the seventh video of the video series on ancient history, previous year questions of the UPSC CSE preliminary examination. In this video, I will be covering all the questions related to the topic Mauryan and post-modern age. So this is part 2 of the video on the Mauryan and post-modern age. So all the questions which are left will be completed here. So I'll be using a lot of learning aids, mnemonics and memory connections to help you learn the information. ठीक है, so you अलग से जाके you won't have to put in a lot of effort. So the first question which we'll be seeing here is, this was asked in 2002. ठीक है, the ancient Indian play of Mudra Rakshasa of Vishaka Datta has its subject on which of the following? A conflict between gods and demons of ancient Hindu lore. So this is wrong. A romantic story of an Aryan prince and tribal woman. This is also wrong. The story of the power struggle between two Aryans. ये भी गलत है. And last क्या दिया? The court intrigues of the time at the time of Chandragupta. This is correct. ठीक है. So देखो, Mudra Rakshas was written by Vishaka Datta in Sanskrit. ठीक है, this is very important and this is a commonly asked question in various examinations. ठीक है, the play narrates the ascent of Chandragupta Maurya to power with the help of Chanakya. It literally means the signet of the minister. ठीक है, तो इस बुक में बेसिकली दिया है कि हाउ चाणक्य हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू कम टू पावर, है ना. और इसमें बेसिकली इसका जो लिटरल मीनिंग है, ये जो वर्ड है मुद्र राक्षस का, इट रेफर्स टू अ रिंग. जो राक्षस था कोई, उनका रिंग का नाम है मुद्र राक्षसा, रिंग ऑफ द राक्षसा विच वॉज स्टोलन बाय चाणक्य स्पाई. ठीक है, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुद्र राक्षसा. ठीक है, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर. और किसके बारे में है? चाणक्य, हाउ चाणक्य ब्रॉट चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन 2003. Consider the following statements regarding the assassinations of Mauryan, Shunga and Kanva rulers. So पहले क्या दिया? The last Mauryan ruler Brihadrat was assassinated by his commander in chief Pushyamitra Shung. ठीक है, सो देखो, दिस इज करेक्ट, है ना. पुष्यमित्र बृहद्रथ was indeed assassinated by Pushyamitra Shung. Then last Shung king Dev Bhuti was assassinated by his Brahman minister Vasudev Kanva, who usurped the throne. This is also correct. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द लास्ट रूलर ऑफ द कन्वा डायनास्टी वॉज डिपोज्ड बाय द आंध्रास. आंध्रास को सतवाहनास भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. इसको एक बार मैं अच्छे से देख लेते हैं. देखो, मौर्यस का जो लास्ट किंग था दैट वॉज बृहद्रथ, है ना. बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय अ जनरल, फेमस जनरल हुज नेम वॉज पुष्यमित्र शुंग. ठीक है, एंड इसके बाद ही शुंगा डायनेस्टी केम इन टू बींग. ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंगास डायनेस्टी, और फिर शुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट वॉज देव बूटी. देव बूटी वॉज किल्ड बाय वासुदेव कन्वा. ठीक है, सो वासुदेव कन्वा एस्टैब्लिश्ड द कन्वा डायनेस्टी. देन फिर अभी नेक्स्ट क्या होगा? जो कन्वा डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे दैट वॉज सुशरमैन. Now Sushaman was killed by Balipukka, who founded the Andhras or the Satavahanas. ठीक है, so as you can see most of the rulers were killed and that is when a new dynasty came in. ठीक है, और यूजुअली उनके मिनिस्टर्स ही होते थे जो उनको मार देते थे. ठीक है, तो मौर्याज में बृहद्रथ was killed by Pushyamitra Shung. Then Shungas में देव बूटी was killed by Vasudev Kanva. Then in Kanvas, Susharman was killed by Balipukka. ठीक है, and all of this is mentioned in the Harsh Charitra and also the Puranas. ठीक है, so these are the documentary evidences of the above.
ये आप याद रखना कि हर्षचरित में दिया है। चरित इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि देखो, किसी को भी मारना इज अ वेरी बैड थिंग, है ना, बैड बिहेवियर होता है। तो चरित्र, चरित्र मतलब कोई भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक किसी का, तो उससे आप लर्न कर लो कि इसमें लोगों को जो मार रहे थे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू डायनेस्टी, उसके बारे में हर्ष चरित्र में दिया है। और चरित्र को आप कनेक्ट कर लो चरित्र से। चरित्र जो भी किसी को मारता है उसका चरित्र खराब होता है, ठीक है। कनेक्टेड लाइक दिस एंड रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2005। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? बिंबिसारा, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसन्नजीत, ठीक है। सो इसमें से गौतम बुद्ध, बिंबिसारा एंड प्रसन्नजीत वर कंटेम्प्रेरीज, whereas मिलिंद केम क्वाइट अ बिट लेटर, है ना। मिलिंद मेनांडर को भी बोलते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक जनरल थे वो, इंडो ग्रीक रूलर, वो केम इन द सेकेंड सेंचुरी BC। वेयर एज जो जैसे बिंबिसारा है, बिंबिसारा वॉज द किंग ऑफ मगध एंड ही वॉज द किंग ड्यूरिंग when Buddha was present, ठीक है। Similarly Prasenjit was the king of Kosala and he was a very famous उपासक, उपासक मतलब फॉलोअर, उपासक ऑफ बुद्धा, ठीक है। And even Bimbisara had met Buddha quite a few times and he had taken his advice on various matters, ठीक है। सो ऑल दीज थ्री वर कंटेम्प्रेरीज, ये दो बार लिख दिया है, ठीक है। मिलिंद वॉज एन इंडो ग्रीक रूलर हु लिव्ड सेंचुरीज लेटर, द अदर वॉज कंटेम्प्रेरीज ड्यूरिंग द महाजनपद एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2006 में पूछा गया है ये। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? तो तक्षशिला बेसिकली अफगानिस्तान साइड में कहीं पे है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, और या पाकिस्तान का नॉर्दर्न पोर्शन में उधर है, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड झेलम। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला इज लोकेटेड and it was a very famous city which was known as a center of Gandhara art and ancient education, ठीक है। और अभी वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और तक्षशिला का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सिटी ऑफ कट स्टोन। तक्ष मतलब तराशा हुआ सिटी, है ना, तक्षशिला, सिटी ऑफ कट स्टोन। और इट इज़ लोकेटेड इन मॉडर्न डे रावलपिंडी, रावलपिंडी पाकिस्तान में है, उसमें लोकेटेड है वो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2006 with reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? ठीक है, तो इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी रेड दिस इन अ प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। मैंने ये आपको एब्रीविएशन लर्न कराया था ISPK। इस PK को वैसे आप निमोनिक लर्न कर सकते हो, इस पाकिस्तान और कंट्री करके ऐसा कुछ निमोनिक लर्न कर सकते हो, है ना। तो ISPK, इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस एंड कुशानास, ठीक है। दीज वर द 4 मेजर इन्वेडर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2012 with reference to the guilds of ancient India, which statement is correct? Which of the following statements are correct? तो गिल्ड का मतलब गिल्ड को दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रेणी, ठीक है। गिल्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन टाइप कुछ चीज़ होती है ना। गिल्ड इज काइंड ऑफ अ ट्रेड यूनियन, या वो यहाँ यही बोल सकते हैं, ट्रेड यूनियन टाइप चीज़ है, उसको श्रेणी बोलते थे एंशिएंट इंडिया में। वील फर्स्ट लुक एट द स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन।
Every guild was registered with the central authority and the king was the chief administrative authority on them. This is wrong. ठीक है, because जो guilds थे, जो श्रेणी थे, they were primarily autonomous bodies. ठीक है, they were registered with the state but the king was not considered to be the chief administrator. Rather, each of the guild had their own chiefs. ठीक है, so that is why the first statement will be wrong. ठीक है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग गिल्ड्स होते थे, उनके चीफ भी अलग अलग होते थे. देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी. नेक्स्ट क्या दिया है? द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो गिल्ड्स का क्या क्या मेन काम क्या था? एक तो अपने मेंबर्स का वेजेस और प्राइसेस को कंट्रोल एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द प्राइसेस. ठीक है, एंड सेकेंडली उनका काम था, क्या था? टू हैव सम एडजुडिकेटरी पावर्स. सो दे हैड पावर्स टू पनिश देयर मेंबर्स एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन 2016. Who of the following had deciphered the edicts of Emperor Ashok? So this is a very simple question. This is asked many times on different examinations. The answer will be James Princip. ठीक है, तो in the James Princip in 1837 had first deciphered the edicts of Emperor Ashok, है ना? And he was an official of the East India Company. और उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी अशोक के टाइम पे उसको डिसाइफर करा था. ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु आइडेंटिफाइड कि जो अशोक थे, किंग अशोक थे, उनको देवनाम पियदासी बोलते थे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस में. ठीक है, सो ही वॉज द वन हु हैड आइडेंटिफाइड कि ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एम्परर अशोक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख. दिस इज वेरी सिंपल. आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू मेक यू लर्न दिस. हाउएवर, इफ़ यू रिक्वायर सम मेमोरी कनेक्शन देन प्रिंस को आप वही उससे लर्न कर लो. प्रिंस, किंग सिमिलर होते हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग या प्रिंस ऑफ इंडिया वाज एम्परर अशोक. ठीक है, उससे आप जेम्स प्रिंसेप को आप यू कैन कनेक्टेड विद दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2019 का है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस is Ranyo Ashok mentioned along with the stone portrait of Ashok. ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन से स्कल्पचर के इंस्क्रिप्शन में ये वाला वर्ड रान्यो अशोक हैज़ बीन रिटन. ठीक है, सो देयर इज ओनली वन इंस्क्रिप्शन इन द इंटायर वर्ल्ड वेर इन अशोका का असली नाम लिखा हुआ है, दैट इज अशोक, रान्यो अशोक, एंड दैट वॉज द कंगनाहल्ली इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्कल्पचर डिस्कवर्ड दैट एक्सप्लिसिटली लेबल्स द पोर्ट्रेट एज अशोक. नहीं तो हर जगह पे देवनाम पियदाशी ये सब ही लिखा है, या चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे उनको टाइटल्स से ही हैज़ बीन एड्रेस्ड रादर दैन हिज नेम. ठीक है, इट इज़ ओनली इन द कंगनाहल्ली इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका वेयर इन हिज नेम, दैट इज अशोक, इज मैंशनड. तो कंगनाहल्ली इज इन सन्नाटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट कंटेन्स द स्पेसिफिक पोर्ट्रेट इंस्क्रिप्शन. और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? कंगनाहल्ली साउंड्स लाइक किंग इन अ हॉल, है ना? किंग, आप तो ऐसे इमेजिन करिए कि अशोक बैठे हैं एक हॉल में. किंग इन अ हॉल, कंगनाहल्ली. ठीक है, सिमिलर साउंडिंग है ना? सो दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट दिस एंड लर्न. किंग इन अ हॉल मतलब अशोक, एम्परर अशोक की बात हो रही है. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. सांची, शहबाजगरी और सोगौरा दिया है ना? सो सांची स्तूप यू माइट बी नोइंग कि इट इज़ इन MP एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोक हिमसेल्फ. ठीक है, उसके बाद में शहबाजगरी. तो शहबाजगरी इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इट इज़ नोन फॉर द रॉक एडिक्ट्स ऑफ मौर्यन एम्परर अशोक. ठीक है, शहबाजगरी, इसको लर्न कैसे करेंगे? शहबाज थोड़ा सा उर्दू नाम जैसा
साउंड करता है ना, उर्दू नाम है. सो इट इज़ इन पाकिस्तान. नेक्स्ट है सोगोरा. सोगोरा, वी हैड लर्न दिस अबाउट दिस इन द फर्स्ट और द सेकेंड वीडियो ऑल्सो. Gora is basically a copper plate inscription written in Prakrit in the Brahmi script. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. तो इसको हमने लर्न कैसे करा था? सौ गौरा को हमने लोहा, सौ सौ लोहा जैसे साउंड करता है ना, लोहा इज अ मेटल. सिमिलरली कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल. ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन बनाया था हमने कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको लर्न हो जाए. ठीक है, और कहाँ पे है ये? यूपी, गोरखपुर ऑफ यूपी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन 2020. Whoever praises his religious sect or blames other sects injures his own sect very severely. Who said this? So this was said by Emperor Ashok. ठीक है, वो काफ़ी, he was a very tolerant person. He was very tolerant towards other religions, and therefore he preached that सारे religions को similar, equitably रखना चाहिए and there should be harmony. ठीक है, सो डू नॉट प्रेज योर ओन सेक्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. ये किस में मैंशनड है? उनका जो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12 है उसमें ये मैंशनड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 12, 12 वाले में, जो 12 है, 12, 12 वाले इंस्क्रिप्शन में ये मैंशनड है कि देयर शुड बी रिलीजियस हार्मनी. ठीक है, दिस एडिक्ट रिफ्लेक्ट्स हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड रिलीजियस टॉलरेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2022 का है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. साइट ऑफ अशोका's मेजर रॉक एडिक्ट्स वर्सेस देयर लोकेशन एंड वी हैव टू टेल हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड. तो क्या क्या दिया है? धौली ओडिशा, एरागुडी ऑफ आंध्र प्रदेश, जौगाड़ा ऑफ मध्य प्रदेश एंड कलसी ऑफ कर्नाटका. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी देखो, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट हैं. एक तो धौली ओडिशा में है, दिस इज करेक्ट, और दूसरा एरागुडी इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये दोनों सही हैं. बाकी जौगाड़ा जो है वो भी ओडिशा में ही है, और कलसी जो है वो उत्तराखंड में है. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द साइट्स एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. देखो, धौली ओडिशा, जौगाड़ा इज ऑल्सो इन ओडिशा. एरागुडी, देखो ये साउथ इंडियन नाम लग रहा है आपको, एरागुडी. एरागुडी इज इन आंध्र प्रदेश. कलसी कहाँ पे? उत्तराखंड में. ठीक है, सो द आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी. ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2022 का है. अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? A person could be a slave as a result of a judicial punishment. This is correct. देखो ये ना थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप क्वेश्चन, अनऑर्थोडॉक्स नहीं, अनयूजुअल टाइप क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने. सच क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कॉमन. ठीक है, सो डू नॉट लूज स्लीप ओवर दिस के इसको लर्न करना है या ऐसा कुछ भी. You should just know the question and the answer. If it is repeated once more, then you'll know the answer. However, इसके जैसे आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत कि इसके जैसे. Do not extrapolate this and then try to read some different texts or something. ठीक है, बस इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड इसके ज़्यादा do not sleep much, do not lose much sleep over this. ठीक है, क्या क्या दिया है? A person could be a slave as a result of a judicial punishment. This is correct. If a female slave bore her master a son, she was legally free. This is also correct. ठीक है, according to Arthashastra. Then if a son was born to a female slave, नहीं, if a son born, this is wrong. If a son born to a father, to a female slave and was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. ठीक है, ये भी सही है. So all the statements will be correct in this case. ये बहुत ही ऐसे unusual type question था, है ना.
दिस इज सच क्वेश्चंस आर हार्डली आस्क्ड एंड ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हो गया देन यू शुड नो द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन, आई थिंक 2025 या 2024 का है। Ashokan inscriptions suggest Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at which level? So the answer for this is district level, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी पूछते हैं, जैसे अशोका मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसके टर्म्स का दे आर वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो कीप इन माइंड टू रीड दैट प्रॉपरली। तो इसमें क्या पूछा है, देखो बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर था उसको उसको ऐसे सब डिवाइड किया हुआ था। जो लोएस्ट फॉर्म या जो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन था वो था विलेज, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट आता था एंड उसके भी ऊपर प्रोविंस, ठीक है। विलेज वॉज हेडेड बाय अ विलेज हेडमैन, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में देवर अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स। द मेजर ऑफिसर मतलब द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन अ डिस्ट्रिक्ट वाज द प्रादेशिका, हेड बोलते थे उनको। एंड वो प्रेजेंट डे डीएम के जैसा कुछ थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके जैसा कुछ पोस्ट थी, ठीक है। दे वर द हेड ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक राजुका होते थे, दे वर कंसर्न विद द जस्टिस और द लैंड रिलेटेड मैटर्स। और एक होते थे युक्ता, युक्ता वाज रिलेटेड टू द अकाउंट्स और द ही वाज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो युक्ता इसको लर्न कैसे करेंगे, युक्ता मतलब यंग, यंग से इट इज सिमिलर टू यंग, है ना। सो younger most officers were usually put into accounts department और the secretariat, ठीक है। फिर जो प्रदेशिका तो आपको मैंने बता दिया डीएम, और राजू का देखो जो जिसके पास भी लैंड होता है वो राज करता है ना, वैसे करके लर्न कर लो। राजू का इज कंसर्न विद लैंड और जस्टिस रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। That is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.